Hello guys, welcome back. Today in this lecture we are going to understand one of the most important topic which has been constantly asked in various other competitive exam is local self-government. This is not only important from law aspirants but other competitive exam aspirants as well. So let us start. Local self-government. The concept of local self-government in India is greatly influenced by Gandhiji idea of Gram Swaraj, that is village should be independent, that village should uh, independently work, not controlled by center or state government, and it means local administration in the village level by the local panchayat. Local panchayat means the group of 5 people who adjudged or who took the control of the whole village and work in the administration, judicial and other work. So it basically means local administration in the village level by local people. Now article 40 of the Indian constitution says state should organize village panchayat and they will function as local self government. 73rd Constitutional Amendment inserted Part 9 containing Article 243 to 243O, and 74th Constitutional Amendment brought Part 9A containing Article 243P to 243G in the Constitution. As per this, there will be three-tier structure of local self-government. Three-tier structure, how could we say? Central, state, and the third is Panchayat Raj institution, which we termed as PRIs, Panchayat Raj institution. 11th schedule of the constitution gives Panchayat Raj institution which control over 29 items. These items means what are the 29 matters which will specifically deal by Panchayati Raj institution. Members are elected direct election, that is people directly elect their leaders or representative in the Panchayat Raj system. Now let us understand the three structure. Something about the three structure of the government is central, state and local self-government. That is local self-government we could find in rural areas as well as in urban areas. इन रूरल एरियाज़ हम देखते हैं पंचायत राज सिस्टम होता है जिसमें ग्राम पंचायत होती है विलेज को एडमिनिस्टर करने के लिए. एंड इन अर्बन एरियाज़ देर आर म्यूनसिपैलिटीज़ कह सकते हैं, नगर पालिका जो होती है उसको बोलते हैं. ठीक है. नाउ हाउ डिड दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और द पंचायत राज केम इनटू कॉन्स्टिट्यूशन? Now there are various committee which worked on this, but the father of Panchayati Raj institution is given name to Balwant Rai committee. So if their question comes, who is the father of Panchayat Raj institution in India, then it is the Balwant Rai committee, which was in 1957, in which term democratic decentralization first appears. What is the meaning of democratic decentralization? First of all, we understand. Democratic decentralization means, first of all, centralization is power in one hand, whereas the decentralization means power, delegated power, that the power is distributed among various groups or various classes. So in this, the democracy was decentralized. Like this, earlier it was central and state government. Now the third institution which deals the village, that is known as the panchayat system. So the term democratic decentralization was first used. The important recommendation made by Balwant Rai committee are establishment of a three-tier panchayati raj system, gram panchayat at village level, that is direct election के थ्रू विलेज लेवल में ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी. पंचायत समिति वॉज देयर एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सी नाउ इफ वी understand this point, firstly we have to understand these three terms. What is gram panchayat, पंचायत समिति, दैट इज़ ब्लॉक लेवल, एंड ज़िला परिषद. देखिए ग्राम पंचायत इज़ बेसिक, यानी कि कई गाँव, मतलब एक पर्टिकुलर गांव में जो कलेक्टिवली लोग इलेक्ट करते हैं लीडर, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत. वो केवल एक सिंगल पर्टिकुलर गांव को डील करती है. फिर आती है पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल. ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक होता है कई गाँव को मिला के एक ब्लॉक बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक लेवल पे. जो कई लीडर्स जो पंचायत ग्राम पंचायत के होते हैं वो फिर आपस में इलेक्ट करते हैं, एक पंचायत समिति बनाते हैं जिसमें कई गांव के इकट्ठा एक
पर्टिकुलर ग्रुप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और फिर सबसे हेड आती है ज़िला परिषद। ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कई ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि 100 होंगे। उस 100 में सपोज़ कि अब 20 बना के एक ब्लॉक बना, तो वैसे गांव और ब्लॉक को मिला के पंचायत ज़िला परिषद बनती है। ज़िला परिषद क्या होती है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर इनमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद, उससे नीचे ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और फिर सबसे नीचे यानी कि एक पर्टिकुलर गांव का, दैट इज़ ग्राम पंचायत, जिसका हेड होता है प्रधान। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ ज़िला परिषद। ज़िला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है टॉप लेवल पे, उसका चेयरमैन हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर to these bodies to be ensured, मतलब transfer of resources, what are the resources and powers and functions should be distributed among these institution। तो ये 3 रिकमेंडेशन थी which was made by the बलवंत राय कमेटी। The existent National Development Council accepted the recommendation, however it did not insist on a single definite pattern to be followed। उन्होंने एक्सेप्ट तो किया रिकमेंडेशन, बट उन्होंने पर्टिकुलर किसी सिंगल पैटर्न को फॉलो ना करते हुए the establishment of these institutions, rather it allowed the state to devise their own patterns, while the broad fundamentals were to be थ्रू आउट द कंट्री, वेयर टू बी सेम थ्रू आउट द कंट्री। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने उसको फुल्ली तरीके से इनके सारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये कहा कि स्टेट इस पे डिसीजन लेगा, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि बेसिकली जो 3 टायर सिस्टम है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द कंट्री में, बट स्टेट वाइज वो अपना थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इससे क्या समझते हैं कि पंचायत जो सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे सेंट्रल इंडिपेंडेंट है, स्टेट इंडिपेंडेंट है, वैसे ये 3 टायर इंडिपेंडेंट नहीं है, बट ये स्टेट के लिस्ट में आता है। स्टेट इसको गवर्न करेगा, स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बट जो अंदर इसके इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल, यहाँ के गांव के विलेजर्स इलेक्ट करते हैं। Now, Rajasthan in 1959 was the first state to adopt Panchayati Raj institution. After that, it was Andhra Pradesh in the same year. Some state even went ahead to create 4 tier system and Nyay Panchayat which served as judicial bodies. कुछ स्टेट ने तो 3 टायर की जगह 4 टायर भी सिस्टम फॉलो करने लगा है। जैसे कि 3 टायर हमने क्या बताया, 3 टायर हो गया ग्राम पंचायत होती है जो विलेज लेवल पे, ब्लॉक पे एक होती है पंचायत, ग्राम समिति जिसको बोलते हैं वो ब्लॉक पे होती है, और जो टॉप होती है वो ज़िला परिषद होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये 3 टायर हो गया। चौथा टायर हो गया पंचायत, न्याय पंचायत, यानी कि जुडिशियली एक्ट, मतलब जुडिशियल बॉडी उन्होंने अपने में क्रिएट कर ली जो खुद डिसीजन लेंगे छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस को लेके। उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी। इन 1977 टू 78 द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जनता गवर्नमेंट। उस टाइम की गवर्नमेंट थी जनता गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, टू स्टडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए जनता गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। आउट ऑफ टोटल 132 रिकमेंडेशन मेड बाय इट, 132 रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने बनाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर 3 tier system to be replaced by 2 tier system, political party should participate in all level of election, compulsory power of taxation to be given to these institution, zilla parishad to be made responsible for planning at the state level, a minister for Panchayati Raj to be appointed by the State Council of Minister, constitutional recognition to be given to the Panchayati Raj institution। यानी कि इन लोगों ने भी बेसिकली वही बात की कि 3 टायर की जगह पे 2 टायर होना चाहिए सिस्टम। कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन लोगों को पावर देनी चाहिए, यानी कि विलेजर्स का जो ये ग्राम सभा ग्राम समिति थी इनको पावर दे देना चाहिए पंचायत को कि वो खुद कलेक्ट कर सके और अपने डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस। और इसी तरीके से 3 4 5 पॉइंट में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। आउट ऑफ 132 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस वी हैव डिस्कस्ड हियर। अनफॉर्चुनेटली द जनता गवर्नमेंट कोलैप्स बिफोर द एक्शन कुड बी टेकन ऑन दीज रिकमेंडेशन। जनता गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, कोलैप्स इन द सेंस उनकी मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, इस वजह से उनकी सरकार गिर गई और ये रिकमेंडेशन ही हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया।
After that, GVK Rao Committee was constituted in 1985, appointed by the Planning Commission. The company, the committee concluded that the developmental procedure were gradually being taken away from the local self-government institution following recommendations were made. तो इन्होंने recommendations क्या की? ज़िला परिषद टू बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, टॉप मोस्ट लेवल पे गांव में ज़िला जिसको बोलते हैं, ज़िला परिषद को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया एंड ऑल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एट दैट लेवल टू बी हैंडेड टू देम। जितने भी गांव में विकास के प्रोग्राम थे, भले वो रोड बनवानी हो, कुआं बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, वो सब ज़िला परिषद के पास फंड आएगा और वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। पोस्ट ऑफ डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड एक्टिंग एज सीईओ ऑफ ज़िला परिषद, यानी ज़िला परिषद का सीईओ, ज़िला परिषद का हेड कौन बनेगा? डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। रेगुलर इलेक्शंस टू बी हेल्ड, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने 1986 में कंस्टिट्यूटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस द्वारा उन्होंने बनाया, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पीआरआई फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इसको नाम दिया रिवाइटलाइजेशन, मतलब दोबारा से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेसी में लाने के लिए उन्होंने इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया। वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पीआरआई, न्याय पंचायत टू बी इस्टेब्लिश्ड। उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, जिसमें क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को पंचायत राज सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को डालना पड़ेगा, और न्याय पंचायत भी बनानी पड़ेगी। दो द 64th अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 1989 इटसेल्फ, राज्यसभा अपोज्ड इट। लोकसभा में तो ये बिल आया, बट राज्यसभा में अपोज हो गया। देन इट वाज ओनली ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, यानी कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब आई, देन द टर्म आइडिया फाइनली बिकेम रियलिटी। फिर फाइनली 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हम लोगों ने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड किया। इसके बाद आते हैं पंचायत राज सिस्टम अंडर 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये क्लियर हो गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू आया। द एक्ट ऑफ 1992 एडेड टू न्यू पार्ट्स। कौन से दो न्यू पार्ट्स ऐड किए? पार्ट 9 और पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो एडेड टू न्यू शेड्यूल्स। दो न्यू शेड्यूल्स कौन से थे? 11 एंड 12, विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फंक्शन आइटम ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ जैसे मैंने बताया, जैसे हमारी रूरल एरिया में पंचायत थी, वैसे हमारे जो सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज़ थे, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ थी। म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब। इट प्रोवाइड्स फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने बताया विलेज लेवल पे क्या होगा? ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल पे कलेक्टिव, जैसे 4-5 गांव मिला के एक ब्लॉक बनता है, वहाँ पे ग्राम समिति होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद होगा। अब समझते हैं हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। From where did this local self government came? Lord Ripon is called as the father of Indian local self government because he is the first British viceroy to give wider rights and power to local bodies by passing a resolution in 1882. सो क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन जो कि वॉइसरॉय थे उस टाइम 1882 में, उन्होंने ये इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट को लाने की बात कही। उन्होंने बताया ये बात, क्यों बताया? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये बात ऑब्वियसली पता चल चुकी थी कि अब सेंट्रलाइज्ड होकर कंट्रोल नहीं ले सकते। तो उन्होंने ये एक तरीके से टैक्टिक्स यूज़ की थी कि हम शो करेंगे कि हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन दिखाएंगे गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में, बट एक्चुअली सब कंट्रोल यही लोग करते थे, बट मियर लोकल पार्टिसिपेशन दिखाया इन्होंने। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या, द रेजोल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट। व्हाट आर दोज रेजोल्यूशन? लेट अस डिस्कस। ऑफिशियल मेंबर्स नॉट ग्रेटर देन 1/3, यानी कि ऑफिशियल मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स समझ लेते हैं। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बने हुए मेंबर्स होते थे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो होते थे गांव के मेंबर्स, जो लोकल पीपल्स होते थे, इंडिजिनस पीपल। तो ऑफिशियल मेंबर्स शुड नॉट बी 1/3, यानी कि ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन 1/3,
चेयरमैन, दैट इज द हेड, शुड बी इलेक्टेड एज नॉन ऑफिशियल पर्सन ही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का हेड होगा, सेल्फ गवर्नमेंट का। दैट इज लोकल पीपल को ही इन्होंने हेड बना दिया था, बट इनडायरेक्टली दे वर कंट्रोलिंग इट। लोकल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज, यानी कि ये लोग आपस में रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते थे। लोकल बॉडी पर्सोनल अंडर कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि लोकल बॉडीज़ जो होती थी, भले वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया हो, छोटे छोटे, दे दे ऑल शुड बी कंट्रोल बाय लोकल बॉडीज़, यानी कि जो लोग वहाँ पे लोकली गवर्न कर रहे थे उन्हीं के हाथ में ये पावर दे दी गई थी कि विलेज को वही कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑन लोकल बॉडी बाय गवर्नमेंट टू बी इनडायरेक्ट, दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, बट डायरेक्टली दे try to show that we are not involved in all this and you have the control and authority to govern yourself, but in actual they were controlling it indirectly। क्रिएशन ऑफ लोकल बोर्ड्स बनाई गई थी कई तरह की, कोई जल विकास के लिए, कोई न्याय के लिए, कोई किसी के लिए, तो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बोर्ड बना दिए गए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन पास नेसेसरी एक्ट टू इम्प्लीमेंट की एस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस टाइम में, मतलब आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट बोलते थे। स्टेट गवर्नमेंट कैन पास एक्ट, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकती थी। Now, let us understand the two important and different views of our political or our constitutional maker. One is the Dr. Ambedkar views on local self-government, and other one is the Gandhiji views on local self-government. When the Bombay Legislative Council, so this I am dealing this Ambedkar view I am taking from constitutional debate which was being made during the making of Indian Constitution. So in the constitutional debate there was one bill came when the Bombay Legislative Council debated enhanced power for panchas मतलब group of five peoples known as panchayat through a village panchayat bill. Ambedkar said a population which is hidebound by caste means एक वो population जो कि caste के नीचे दबी हुई है, जाति प्रथा से दबी हुई है, a population which is infected by ancient prejudices, एक ऐसी population जो कि infected है भेदभाव से। प्रिजुडाइज मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि ऑलरेडी इतने साल से भेदभाव से पीड़ित है, इन्फेक्टेड है। अ पॉपुलेशन विच फ्लाउट्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, एक पॉपुलेशन जो इक्वालिटी के लिए हमेशा आज भी जद्दोजहद कर रही है, और जो कि डोमिनेटेड है बाय द नोशन ऑफ ग्रेडेशन इन लाइफ, यानी कि लाइफ प्रोग्रेस में वो एकदम पिछड़ी जाति की तरह रह रही है। उस पॉपुलेशन से हम ये उम्मीद करें कि वो पॉपुलेशन क्या खुद को जस्टिस दिला पाएगी, क्या खुद वो डिस्चार्ज कर पाएगी जस्टिस? क्या लिखा है? एंड सम और लॉ कैन इट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट नोशन इवन टू डिस्चार्ज बेयर जस्टिस? Sir, I deny that proposition and I submit that it is not proper to expect us to submit our life and our liberty and our property to the hand of these panchas. Ambedkar views on somewhat to an extent, even after 8 decades, despite innumerable constitutional safeguard, law and political speeches are ट्रू इन माई ओपिनियन। अम्बेडकर का ये ओपिनियन था, जो विलेजर्स आज तक शोषण हो रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो जात भेद हो, चाहे जाति के आधार पे उनके साथ भेदभाव हुआ हो, चाहे डेवलपमेंट के आधार पे हुआ हो, इस सिचुएशन में क्या वो खुद को सेल्फ गवर्न कर सकते हैं? क्या वो खुद को जस्टिस दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। ही वॉज इन ऑफ द ओपिनियन कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हमें कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? इसलिए नहीं इनकॉर्पोरेट करने के फेवर में थे क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी चाहते थे डिवाइड एंड रूल, और हमारा जो कंट्री है वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर और लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो अगर आज सेपरेट सेपरेट विलेज में लोग अपने आप को खुद गवर्न करने लगते, तो जो कि पहले से डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था ज़मींदारों द्वारा, वो सेम चलता, कुछ चेंजेस नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट कौन होते? वही बड़ी जात के लोग इलेक्ट होते, चाहे वो फोर्सफुली इलेक्ट होते, चाहे वो पैसे के दम पे इलेक्ट होते, तो डिस्क्रिमिनेशन चेंज नहीं होता। तो इसलिए वो इस फेवर में इस समय के लिए नहीं थे कि पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में अभी इनकॉर्पोरेट किया जाए। Now let us understand the Gandhiji view on local self-government. Gandhiji had a very different perspective in rural development. He believed in Gram Swaraj. Gram Swaraj what means? Gram means village, Swaraj means independence.
PRIs मतलब Panchayati Raj Institution or local self-government. In simple words, he believed that each village in India should act as a separate republic, independent of its neighbor, for its own vital wants and yet interdependent on many others, in which dependency is necessary. Each village should be basically self-reliant, making provision of all necessity of life, food, clothing, clean water, sanitation, house, education, and so on, including government and self-defense and all socially useful amenities. It basically wants that all village should be self-reliant, act as an individual republic, and have the feeling of brotherhoodness among the other villages. This concept is revolutionary but still has its own pros and cons. It would become very difficult to utilize India's natural resources concentrated in different regions of the country for overall development of India. सो गांधी जी का व्यू यहाँ पे ये कहता था कि हम विलेज को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए, वो खुद को सेल्फ गवर्न करेंगे, क्योंकि जब सेल्फ गवर्न करेंगे तो सेल्फ रिलायंट होंगे, खुद इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली. बट ये सम टू द एक्सटेंट गलत था, क्योंकि था क्या, अगर वो अपने आप को इंडिविजुअली गवर्न करने लग जाते तो अपने ही देश में यूनिटी नहीं आ सकती थी. इसलिए क्योंकि सपोज करिए कर्नाटका एक स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है. अब वहाँ के विलेज में अगर मिनरल रिसोर्सेज मिलता है तो क्या वो नेशन अदर जगह के लिए यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर सेल्फ गवर्न करेगा वो विलेज तो वो देगा नहीं अपने रिसोर्सेज. तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था. एक पर्टिकुलर विलेज बहुत रिच हो जाता और दूसरा विलेज बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता. तो इन माय ओपिनियन this was not good at that time, but now it has been constitutionally incorporated. But earlier at the time of making constitution, it was in the directive principle of state policy, that is in future it could be made as a constitutional provision. So this was all about local self government. Now one of the most important question I would like to ask from you all guys, and answer me in the comment box, or you can upload a pic in the comment box so that I could see the answer and how good it was written. So my question is, what is the importance of local self government in a democracy such as India? Why do you think did the maker of the constitution not give adequate importance to this subject in the original constitution document? Discuss. Word limit should be 250 words. Thank you.